Welcome to my channel Binayak Mathematics Sunil. In class 9 CBSE pattern, there will be a topic number system. Let us go to the number system topic. That is the first unit. Number system. First of all, we know about the firstly key concept of the number system. Number line. In array, the middle point is 0, left hand side is -1, -2 up to infinity, and right hand side positive signs 1, 2, 3, 4 up to infinity. Natural number. First of all, we know about natural number. Natural number is denoted by n. That is called a counting number. Any counting number 1, 2, 3, 4 जो भी काउंटिंग नंबर है उसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर. होल नंबर इज डिनोटेड बाय w. इन दिस होल नंबर 0 will be included, so it is called as whole number. But in natural number, only counting number 1, 2, 3, 4. That is the difference. Let us go through the integers. An integers is denoted by z. In these integers, there will be positive signs. This is positive signs and this is negative signs, and also include be 0. That is called an integers. Next, we go through rational number. Rational numbers. All the numbers which can be written in the form of p by q, where q is not equal to 0, are called rational numbers, where p and q are integers. For examples, 3 by 5, where this is the p, this is the q, where q is not equal to 0, ये 0 नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे rational numbers. Let us another examples 4 by 5, where 4 is the p and 5 is the q. In these examples, q is not equal to 0, or examples 3 by 6, that is equals to 1 by 2. This is p, this is q, where q is not equal to 0, so it is called a rational number. Then we go through the definition of irrational numbers. A number s is called irrational if it cannot be written in the form of p by q. कोई भी नंबर को हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे तो उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स. where p and q are इंटीजर्स का मतलब है पॉजिटिव साइंस भी होगा और नेगेटिव साइंस भी होगा. p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. ये कंडीशन है, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल्स रूट फाइव को हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे. रूट 2 है, ये भी इरेशनल नंबर्स है. ये तो हो गया की कंसेप्ट. देन वी गो थ्रू द एक्सरसाइज 1.1. ये है नंबर 1. इज 0 ए रेशनल नंबर्स? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q? ये बोला है कि 0 एक रेशनल नंबर है क्या? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q? उसको हम p by q फॉर्म में लिख सकेंगे क्या? where p and q are integers and q is not equal to 0. p and q are integers है और q is not equal to 0. आंसर क्या होगा? आंसर होगा yes. why 0 is a rational numbers? yes, it is a rational number. 0 is a rational number because it can be written as 0 equals to, हम लिख सकेंगे 0 by 1. this is the p by q form. then we also written as 0 by 2, that is also p by q form. 0 by 3 in the form of p by q, totally p by q फॉर्म में हो रहा है. तो so it is a rational number. 0 is a rational number. Then we go through the next number 2. Find the 6 rational numbers between the 3 and 4. 3 and 4 दोनों नंबर के अंदर में 6 रेशनल नंबर हमको फाइंड करना पड़ेगा. तो उसका सॉल्यूशन है, here 6 is the rational number. We have to find 6 rational number. So here 6 is the rational number to be found. So 6 plus 1 equals to 7. जितना भी रेशनल नंबर्स यहाँ पे पूछेगा तो वहाँ पे हमको 1 ऐड करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल फाइंड 7 रेशनल नंबर्स. सो वी हैव टू 7 plus 1 यहाँ पे होगा 8 होगा. तो देन गो थ्रू द solution. Here 6 is the rational numbers to be found. So 6 plus 1 equals to 7. And we have to make denominator to be, हमको इसलिए करना पड़ेगा कि क्योंकि जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर को हमको 7 करना पड़ेगा. यहाँ पे 6 रेशनल नंबर बोला है, उसके लिए हमको यहाँ पे 6 plus 1 7 करना पड़ेगा. डिनोमिनेटर को 7 करना पड़ेगा.
लेट अस गो थ्रू। यहाँ पे जो क्वेश्चन पे बोला है बिटवीन 3 and 4 नंबर के अंदर में 6 रेशनल नंबर हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो 3 इक्वल टू हम लिखेंगे डिनोमिनेटर को 7 करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर को 7 से डिवाइड कर देंगे 7, तो डिनोमिनेटर को 3 डिवाइड बाय 1 है, 3 को हम 3 डिवाइड बाय 1 भी बोलेंगे ना, तो 1 इंटू 7 होगा तो 7, तो नीचे 7 मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 7 मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 7 7 है, 3 इंटू 7 ये हो गया 21, ये हो गया 7। देन 4 भी ऐसे ही होगा, 4 डिवाइडेड बाय 1 है ये, तो 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमको 7 बनाना पड़ेगा ये क्वेश्चन में। तो 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 28 divided by 7. Imply that 6 rational numbers between 3 and 4 can be found by varying the numbers between 21 and 28. ये दोनों के अंदर में होगा जो 6 रेशनल नंबर्स है, 21 और 21 डिवाइडेड बाय 7 एंड 28 डिवाइडेड बाय 7 अंदर में 6 रेशनल नंबर्स है, वो है दैट इज 22, उसके बाद 22 बाय 7 आएगा, उसके बाद 23 बाय 7 आएगा, उसके बाद 24 बाय 7, 25 बाय 7, 26 बाय 7, 27 बाय 7, ये 22 बाय 7, 23 बाय 7, 24 बाय 7, 25 बाय 7, 26 बाय 7, 27 बाय 7, क्योंकि 28 भी नहीं होगा, क्योंकि ये बिटवीन बोल रहा है क्वेश्चन पे 3 and 4 between there will be we have to find 6 rational number for in this question। ये भी हो सकता है फाइंड 8 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, ये होगा तो यहाँ पे हमको 8 + 1 करना पड़ेगा, 8 + 1 करना पड़ेगा, 8 + 1 करना पड़ेगा, 8 + 1 इक्वल्स टू 9 होगा, 9 होगा तो 8 + 1 इक्वल्स टू 9 होगा। क्वेश्चन में 8 रेशनल नंबर्स, फाइंड 8 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, ये क्वेश्चन होगा तो आंसर होगा 8 + 1 इक्वल्स टू 9। 9 को हम 9 ये क्या है, ये डिनोमिनेटर को हमको 9 बनाना पड़ेगा। 3 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 3 डिवाइड बाय 1 है, तो हमको यहाँ पे करना पड़ेगा 1 इंटू 9, 3 इंटू 9, ये हो गया 27 डिवाइडेड बाय 9। और 4 से भी ऐसे ही होगा, 4 का मतलब क्या है, 4 डिवाइड बाय 1 है, तो यहाँ पे भी क्या 9 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर पे, तो वहाँ पे हम 1 इंटू 9, 4 इंटू ऊपर पे भी 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 इंटू 9, तो यहाँ पे हो गया 36 डिवाइडेड बाय 9। तो उसका जो अंदर है इन बिटवीन 27 बाय 9 एंड 36 बाय 9 हमको 8 रेशनल नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही होगा, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछेगा 6 या 7 या जो भी पूछेगा हमको 1 इंक्रीज करना पड़ेगा, और इंक्रीज करने के बाद जो नंबर दिया है उसका डिनोमिनेटर को उसी नंबर ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगले बार 3 and 4 नंबर भी है, उसी को हम करेंगे। थैंक यू।